شہرنامے میں آپ کو خوش آمدید۔ شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ خبر دیں آپ کو، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے گورنر ہاؤس لاہور میں پاکستان ہارس اینڈ ماؤنٹ آرچری فیڈریشن کے نیشنل نیزہ بازی ججز کے لیے منعقدہ ٹریننگ کورس کے شرکاء نے ملاقات کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے فیڈریشن کی کوششوں کو سراہا اور ججز میں اسناد تقسیم کی۔ گورنر پنجاب نے روس میں سلور اور کانسی کے تمغے جیتنے والے محمد اسد، محمد ارحم، قازقستان میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے ارشق نعیم اور اورنگزیب مبشر کو پاکستان کلر سے نوازا۔ گورنر پنجاب نے دیسی نیزہ بازی کے فروغ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب کی ثقافت سے جڑے روایتی کھیل بحال ہونے چاہیے۔ اس سلسلے میں گورنر ہاؤس سے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔ معاشرے میں کھیلوں جیسی سرگرمیوں کا فروغ نوجوانوں کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محمد عرفان ڈوگر نے خانقاہ ڈوگرہ صفدر آباد کا دورہ کر کے مختلف مقامات پر کام کا معیار چیک کیا۔ خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ خانقاہ ڈوگرہ میں مین صفدر آباد روڈ کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ کاموں کا جائزہ لینے کے لیے مسلم لیگ نون کے رہنما محمد عرفان ڈوگر نے کاموں کے معیار کا جائزہ لیا۔ سردار عرفان ڈوگر نے کہا کہ روڈ کی تعمیر میں بہترین مٹیریل استعمال کیا جائے، کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ہی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ سابقہ اداروں میں خانقاہ ڈوگرہ شہر سے سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا۔ انشاءاللہ جلد مین لاہور سرگودا روڈ کی بھی تعمیر کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ رخ کریں گے سیالکوٹ کا، جہاں پر شوہر نے فائرنگ کر کے بیوی اور ساس کو قتل کر دیا۔ ملزم واقعے سے فرار ہو گیا۔ سیالکوٹ کے علاقے پکی کوٹلی میں بلال نامی شہری نے گھریلو ناچاکی سے تنگ آ کر بیوی اور ساس کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس نے پہنچ کر لاشوں کو اسپتال منتقل کیا۔ پولیس کے مطابق بلال اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ اپنے میکے آیا۔ تلخ کلامی کے بعد بلال نے فائرنگ کر دی، جس سے بیوی اور ساس جان سے گئیں۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ بلال اپنی سالی سے شادی کرنا چاہتا تھا، انکار پر اس نے فائرنگ کر دی۔ ایپکا یونین میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کے عہدیداروں کی جانب سے میونسپل کارپوریشن میں لگائے گئے ناقص کیمروں کے حوالے سے کرپشن کا انکشاف کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف فیصل آباد میاں نعیم صفدر کی اس رپورٹ میں۔ ایپکا یونین میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کے عہدیداروں کی جانب سے میونسپل کارپوریشن میں لگائے گئے ناقص سی سی ٹی وی کیمروں کے حوالے سے بڑی کرپشن کا انکشاف کیا گیا۔ بذریعہ درخواست ریکارڈ فراہمی مانگا گیا، مگر اب تک فراہم نہ کیا گیا۔ چیئرمین ایپکا میاں انور کی عہدیداروں کے ہمراہ میٹرو ون نیوز سے گفتگو۔ ہم نے جو سیکیورٹی کیمروں کے حوالے سے میونسپل کارپوریشن میں جو لگائے گئے ہیں وہ انتہائی ناقص لگائے گئے تھے۔ موٹر سائیکلیں جو ہماری ملازمین کی تھی وہ درجہ 4 ملازمین ہیں، ان کی 5 موٹر بائک جو ہیں وہ مختلف اوقات میں چوری ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ سے ہم نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا۔ اب جو موجودہ صورتحال میں اس کیمرے تو ٹھیک ہو چکے ہیں، لیکن جو ہماری اپلیکیشن ہے اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ناقص کیمرے لگائے گئے ہیں اس کا ہمیں ورک آرڈر، اس کی سٹیٹمنٹ، اس کے ٹھیکیدار کی لسٹمنٹ، یہ ساری چیزیں ہمیں مہیا کی جائیں، کیونکہ جو اس کی پیمنٹ ہے وہ تقریباً 82 لاکھ روپیہ جو ہے نا اس کی پیمنٹ کی گئی ہے۔ تو اس میں لاہ عمل جو کیمرے لگائے گئے ہیں وہ تقریباً 4-5 ہزار کے کیمرے لگائے گئے ہیں۔ ہماری اپلیکیشن اس وقت کاشف بٹ صاحب کے پاس ہے، جو میونسپل آفیسر انجینئرنگ برانچ ہے، تو وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کیمرے آپ کے ٹھیک کروا دیے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کیمرے ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن بٹ صاحب میں آپ کو میڈیا کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں جو ریکارڈ ہے وہ مہیا کیا جائے۔ چیف افسر صاحب آپ سے بھی میری گزارش ہے، ہمبل میری گزارش ہے کہ ہمیں جو ریکارڈ ہے وہ مہیا کیا جائے تاکہ ہم اس کو پرسو کر سکیں، تاکہ ہم اس کو قانون کے دائرے میں لے کے آ سکیں۔ میونسپل کارپوریشن کے ایم او آئی کاشف بٹ سے اس حوالے سے موقف مانگا گیا تو درخواست کے حوالے سے لا علمی کا اظہار کیا گیا۔ کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ میاں نعیم، میٹرو ون نیوز، فیصل آباد۔ اکاڑا میں دن دہاڑے ملزم موٹر چوری کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ تھانہ اے ڈویژن کی حدود میں نجی لیب کے سامنے سے چور موٹر سائیکل چوری کر کے فرار ہو گیا۔ میٹرو ون نیوز نے ویڈیو حاصل کر لی۔ خبر دیں آپ کو، ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ سیکورٹی گارڈ کی یونیفارم پہنے شخص نے موٹر سائیکل چوری کی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس ملزمان کو پکڑنے میں ناکام ہے۔
पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत अकीला कॉम्प्लेक्स दौलताबाद ज़िला विहाड़ी में स्पोर्ट्स मेला मुनक़िद हुआ, जिसमें तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स मेला स्टेडियम अकीला कॉम्प्लेक्स दौलताबाद विहाड़ी में मुनक़िद हुआ, जिसमें पैप से मुनसका स्कूलों के तलबा तालिबात ने भरपूर हिस्सा लिया। पैफ के सपोर्ट्स सदर कमेटी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसी सरगर्मियों से स्टूडेंट्स की न सिर्फ जहनी और जिस्मानी नशोनुमा होती है बल्कि तामीरी सोच भी पैदा होती है। तलबा हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं और खेलों के ज़रिए हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। भावल नगर में गैर कानूनी शिकार करने वालों के खिलाफ महकमा वाइल्ड लाइफ ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। महकमा वाइल्ड लाइफ टीम ने जदीद असलाह समेत 4 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए मुल्ज़िमान नायाब हिरन का शिकार कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए मुल्ज़िमान को 2 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। आरपीओ सरगोदा रीजन ने डीपीओ भक्कर के हमरा ज़ेरे तामीर थाना कलवर कोर्ट की बिल्डिंग का मुआयना किया। आपको बताएं कि आरपीओ सरगोदा रीजन मोहम्मद शहजाद आसिफ खान ने डीपीओ भक्कर मोहम्मद अब्दुल्ला लिख के हमरा दौरा कलवर कोर्ट के मौके पर थाना कलवर कोर्ट की नई ज़ेरे तामीर बिल्डिंग का मुआयना किया। इस मौके पर आरपीओ सरगोदा ने ज़ेरे तामीर प्रोजेक्ट के मुतालिक ब्रीफिंग ली और मुकर्ररा वक्त के अंदर प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की हिदायत की। पाकपतन में पहली गैर सरकारी यूनिवर्सिटी में तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हो गई। इफ्तिताही तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात आतिफ जनी की इस रिपोर्ट में। पाकपतन के तालिब इल्म अब अपने ही शहर में यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर सकेंगे। निजी यूनिवर्सिटी ने अपने पाकपतन में कैंपस में तालीमी सरगर्मियाँ शुरू कर दी। यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर पीर मोइन चिश्ती का कहना है कि कोशिश है कि बच्चों को नहायत कम फीसिस में आला तालीमी सहूलियात फराहम करें। और इसके अंदर हमने कंप्यूटर साइंसेज, मैथमेटिक्स और एलाइड हेल्थ साइंसेज के बेशुमार प्रोग्राम्स वतन के लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ के अलावा हॉस्टल की फैसिलिटीज़ हैं, लाइब्रेरीज़ आके आप लोग विज़िट भी करें। इफ्तिताही तकरीब में शहर की सियासी व समाजी शख्सियात और तालिब इल्मों की कसीर तादाद ने शिरकत की। हम इस कैंपस में एलाइड हेल्थ साइंसेज जो है वो शुरू कर रहे हैं उसके प्रोग्राम। उसमें एक तो ये है कि फॉरेन मार्केट में और इवन कंट्री में उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक इस कैंपस में तलबा को साइंस और कंप्यूटर समेत तमाम ज़रूरी मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे, जिनसे वो रोशन मुस्तकबिल का आगाज़ कर सकेंगे। अल खिदमत फाउंडेशन का मोबाइल हेल्थ यूनिट साक़ाबाद के तारीखी शहर अहमदपुर लमा पहुँच गया। सैकड़ों मुस्तहिक अफराद को फ्री चेकअप, अद्वियात, टेस्ट की सहूलियात फराहम की गई। मज़ीद जानते हैं राना महबूब अहमद की इस रिपोर्ट में। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से दही इलाकों में मोबाइल हेल्थ यूनिट की सहूलत फराहम करने का दूसरा रोज़ मोबाइल हेल्थ यूनिट सादिकबाद के तारीखी शहर अहमदपुर लम्हा पहुँच गया, जहाँ सैकड़ों अफराद को फ्री इलाज की सहूलत फराहम की गई। माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का चेकअप किया, ब्लड टेस्ट किए और मरीजों को 7 रोज़ की फ्री अद्वियात फराहम की गई। अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से आज अहमदपुर लम्हा में मोबाइल हेल्थ यूनिट पहुँचा है और आज इसका दूसरा दिन है। यहाँ पे लोग अपना चेकअप करवाने के लिए, गरीब लोग अपना चेकअप करवाने के लिए आ रहे हैं। कामी अफराद का कहना है कि अल खिदमत फाउंडेशन ने इंसानियत की खिदमत की आला मिसाल कायम कर दी है। गुर्बत की चक्की में पिसी अवाम को जब बाइज्जत तरीके से फ्री इलाज की सहूलत फराहम की गई तो इनकी खुशी की इंतहा न रही। गरीब कहाँ से दवाइयाँ लें, पेट पालें या अपनी दवाइयाँ लें। अल खिदमत
खिदमत फाउंडेशन का मोबाइल हेल्थ यूनिट 3 रोज तक फ्री इलाज की सहूलत फराहम करेगा, जिससे सैकड़ों मुस्तहक नादार अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। कैमरा टीम के साथ महबूब अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकबाद। 4 गैर मुल्की साइकिलिस्ट 15 ममालिक का सफ़र करते हुए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल पहुँचे तो उनका पुरतपाक शानदार इस्तकबाल किया गया। सदर प्रेस क्लब और जनरल समेत दीगर अरकान प्रेस क्लब की जानिब से फूलों के हार लेकर खड़े हुए और खानेवाल से देखेंगे साजिद गफ्फार चौधरी की इस रिपोर्ट में। मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र साइकिल पर करने वाले 4 साइकिलिस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल पहुंच गए। हमने बहुत से मुल्क साइकिल पर घूमने के बाद पाकिस्तान पहुंचे हैं। हमारा ताल्लुक जर्मनी, फिनलैंड, नीदरलैंड और पुर्तगाल से है। पाकिस्तान में घूमते हुए बहुत से ऐसे मकामात देखे हैं जो किसी मुल्क में नहीं है। पाकिस्तान को बड़ा पुरअमन मुल्क पाया। हमें सिक्योरिटी कोयटा से सक्खर तक दी गई, मगर हम सिक्योरिटी नहीं लेना चाहते। सिक्योरिटी हमने वापस कर दी है। पाकिस्तान में घूमते हुए लोगों ने हमारा शानदार इस्तकबाल किया है और हर शहर से बहुत प्यार मिला है। So for me it's like to see the world by my own, so I can tell the people how the world is, and also to show the woman that woman can do anything. Also see the world with my own eyes, to make my own experience. I think the most news in the world are lying, and I want make my own experience in the world, to see different cultures, met people from different countries. Okay, so for me the reason why I choose to travel the world by bicycle is because it has the best speed for being fast enough to travel the world, but also to get close to the people, to stay where you want, to enjoy the nature, and to dive in the culture of every country we have crossed so far. अभी हम यहाँ से लाहौर जा रहे हैं। लाहौर से हम वाघा बॉर्डर के रास्ते इंडिया से घूमते हुए दीगर ममालिक का सफर तय करेंगे। कैमरामैन टीम के साथ साजिद गफ्फार, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। गुजरात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर पब्लिक डीलिंग औकात का निफाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वर्क ने आज अपने दफ्तर में अवामी मसाइल सुने और फौरी कार्रवाई के अहकामात जारी किए। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक तमाम सरकारी दफातर में अफसरान मौजूद रहेंगे ताकि शहरियों के मसाइल का फौरी हल मुमकिन हो सके। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस दौरान कोई इजलास या फील्ड विजिट नहीं होगा और शहरियों को उनके मसाइल के हल के लिए मुक़र्रर औक़ात में दफातर से रुजू करने की हिदायत की गई है। आवाम के मसाइल के फौरी हल के लिए ये इक़दामात किए जा रहे हैं। शहरियों की सहूलत और सरकारी खिदमात तक बआसानी रसाई के लिए पब्लिक डीलिंग औक़ात के निफाज को सख्ती से यकीनी बनाया जा रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ख़बर देंगे आपको गुजरांवाला से, जहां थैलेसीमिया मुतासरा बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना जावेद महमूद कैंप में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। राना महमूद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम सियालकोट रोड पर मौजूद हैं फतोमान मरकज़ी ईदगाह में। बात करें तो थैलासीमिया के हवाले से इस वक्त बड़े कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में शहरी खून डोनेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मरान बाचर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। सर, थैलासीमिया के पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लम्हा फिक्रिया है, क्या मैसेज कन्वे करेंगे? जी ऐसे है कि एक तो हमें इसकी प्रिवेंशन के लिए काम करना चाहिए और टेस्टिंग की जो है फैसिलिटी उसे अवेल करना चाहिए। दूसरा, जो हमारे तकरीबन 1,20,000 पेशेंट बच्चे हैं पाकिस्तान में मौजूद है मरीज़, उनकी केयर के लिए ज़रूरी है कि बाकी जो सेहतमंद लोग हैं उन्हें ब्लड दें और ब्लड डोनेट करके कम से कम उनकी ज़िंदगी को महफूज कर लें और उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सके। तो मैं समझता हूँ कि ये तकरीबन 25 करोड़ जो इंसान है वो 1.5 लाख इंसानों की केयर अपने सिर्फ ब्लड के ज़रिए कर सकते हैं। मुझे पता है कि ये बड़ा कीमती चीज़ है अपने जिस्म से एनर्जी निकाल के देना, लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं कि हम अपने भाइयों के लिए कुर्बानी दें और कुर्बानी कर दे के उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करें। जी, और हमारे साथ इस वक्त डीएसपी रमज़ान कम्बोसा भी मौजूद है, आइए उनसे भी बात करते हैं। सर, थैलासीमिया बच्चों के वालिदैन को क्या मैसेज कन्वे करेंगे? सर, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जितने भी दूसरे लोग हैं सारे के सारे की ऐसा नेक काज है, ये एक ऐसी नेकी है जिसके अंदर अपना हिस्सा डाल सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को बढ़ा सकते हैं, जो दूसरा जो मुतासरीन हैं उनकी ज़िंदगी में इजाफा हो सकता है। इसके लिए हम सबको चाहिए कि जैसे अभी जदर साहब बता रहे थे कि 1.5 लाख के करीब ऐसे मुतासरीन हैं, उनके लिए हर बंदा ये कोशिश करे कि अपना ब्लड डोनेट करे।
करे और वो खुद जो अपने टेस्टिंग करवाएं ताकि इससे बचा जा सके। शुक्रिया जी। बिल्कुल, आपने इमरान अब्बास और रमज़ान कंबोज साहब की बात उनका यही कहना था कि जो ये थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, जो शहरी हैं, अपना ब्लड इनको डोनेट करें। बिल्कुल जी। शेखुपुरा में 10 लाख तावान के लिए मामू ने 6 साल कमसुन भांजी को अगवा कर लिया। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके मुलजिम को हिरासत में लेकर बच्ची को बाजियाब करा लिया। आपको बताएं कि DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख ने अगवा बराए तावान के मुलजिमान को नहायत कम वक्त में ट्रेस करके उनके कब्जे से मुगवी कमसिन बच्ची को बाहिफाजत बाजियाब करवाने और तावान की रकम बरामद करवाने पर थाना A डिवीज़न पुलिस से इन्वेस्टिगेशन टीम को शाबाश और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। इस मौके पर DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख का कहना था कि शेखुपुरा पुलिस मुलजिमान को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने में कोई कसर बाकी न रखेगी। CIA पुलिस ने ननकाना साहब की बड़ी कार्रवाई, जुआ खेलते हुए 24 जुआरी रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान को थाना सदर ननकाना के इलाके तारागढ़ से जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक ज़िला शेखुपुरा, लाहौर, फैसलाबाद और दीगर अजला से है। मुलजिमान के खिलाफ थाना सदर ननकाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद कार्रवाई का अमल ताहाल जारी है। DPO सैयद नदीम अब्बास का ये कहना था कि जुआ के अड्डे चलाने वाले और जुआ खेलने वाले नाकाबिल माफ़ी हैं। जराइम पेशा नासिर जितने भी ताकतवर क्यों न हो, कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सुल्तान अल आशिकीन हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर आने वाले ज़ायरीन की हिफाजत के लिए 500 पुलिस एहलकार मामूर कर दिए गए हैं। वहीं पर रेस्क्यू 1112 की तरफ से ज़ायरीन की सहूलत के लिए फ़र्स्ट एड मुहैया करने के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। इस बारे में जानते हैं राजनपुर से हमारे नुमाइंदे आमिर AD से। जी आमिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी, सुल्तानुल आशिकीन हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर आने वाले ज़ायरीन की हिफाजत के लिए जहां 1500 एहलकार तैनात है, वहीं पर हंगामी बुनियादों से निपटने के लिए रेस्क्यू 1112 की तरफ से भी यहाँ पर खिदमत अंजाम दी गई है। हमारे साथ ऑफिसर मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी, 3 रोज़ा उर्स के हवाले से रेस्क्यू 1112 ने भी अपनी जो है खास जो है ना वो खिदमत अंजाम दे रखी हैं। उन्होंने मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जो है ना अपने कैंप वगैरह फर्स्ट एड कैंप बनाए हुए हैं। मुख्तलिफ जगहों पे एम्बुलेंस खड़ी कर रखी है, रेस्क्यू बाइक्स खड़ी कर रखी है। अपने तमाम का तमाम स्टाफ इन्होंने मुख्तलिफ पॉइंट्स पर खड़ा किया। किसी हवाले से कोई भी कोई मसला आता है आवाम को, लोगों को, विक्टिम्स को, तो उसी वक्त हम लोग उनकी फौरी मदद के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। जी, किसी भी हादसा से निपटने के लिए जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स लगाए गए हैं और यहाँ पर रेस्क्यू के जो एहलकार हैं वो अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। जी, रुक करेंगे पतौकी का, जहाँ पर रेस्क्यू 1112 की जानिब से यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज रावी कैंपस पतौकी में तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तरबियती वर्कशॉप का मकसद हर घर में एक ट्रेन याफ्ता फर्स्ट एडर तैयार करना है, जो कि रेस्क्यू टीमों के पहुँचने से पहले मुतासरा मरीजों को तिबी इमदाद फराहम कर सके। इस दौरान मसनूई तरीके से दिल और सांस को बहाल करने और किसी हादसे या तेज़ धार आले या नोकीली चीज़ लगने से बहुत ज़्यादा बहने वाले खून को रोकने की अमली तरबियत दी गई। इस दौरान यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात के दरमियान दिल और सांस बहाल करने का मुकाबला हुआ, जिसमें तलबा ने 15 मिनट CPR करके मैदान मार लिया। यूनिवर्सिटी की जानिब से रेस्क्यू 1112 की इस ट्रेनिंग को खुशाइन करार दिया गया। हारून आबाद के नवाही इलाका बंगला यतीमवाला के निजी स्कूल के टीचर ने तालिब इल्म पर बहिमाना तशद्दुद किया। आपको बताएं कि तशद्दुद से 9 उम्र तालिब इल्म का बाजू और हाथ की उंगलियां शदीद मुतासिर हुई। बच्चे को तिब इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहल खाना का कहना है कि हमारा मुतालबा है कि टीचर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। पुलिस का कहना है कि अहल खाना की दरख्वास्त देने के बाद हम कोई कार्रवाई करेंगे।
कश्मीर में काश्तकारों से होने वाली ज़्यादतियों के खिलाफ तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि किसान दिन रात मेहनत करते हैं, मगर अफसोस मिल माफिया किसानों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। फसल पककर तैयार तो हो गई है, अभी तक किसानों को फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरी जानिब बीज और खाद की कीमतों में इजाफे की वजह से भी किसानों को नुकसान पहुँचा है। मुजाहिरीन ने DC कश्मीर से अपील की कि उनकी कीमतों में इजाफा किया जाए ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सके। हैदराबाद में निजी फलाही तंजीम की जानिब से 15 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक़्क़िद की गई। शादी में जहेज़ के साथ शादी के तमाम इंतज़ामात तंजीम ने मुकम्मल किए। जश्न विलादत के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी जिलानी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से गरीब लड़कियों की 7वीं सालाना इज्तिमाई शादियों की तकरीब एक निजी फार्म हाउस पर मुनक्किद की गई। आज मेमन फार्म हाउस पर 7वां सालाना इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि हम उन गरीब फैमिलियों को सपोर्ट करें जो जहेज न होने की वजह से अपनी बच्चियों के रिश्ते नहीं कर सकते। बहुत हमें खुशी हो रही है देख के, बहुत अच्छा हो रहा है। और बच्चियां जो अपने घर पे जा रही है, बच्चियों के लिए सही है। वो ये अपनी कावशों से ये तकरीब मुनक़्क़िद करते हैं और आज भी 15 वो खुशनसीब जोड़े जिनका आज निकाह हो रहा है और शादी हो रही है। इस मौके पर जिलानी वेलफेयर फाउंडेशन के मेंबरान व ओहदेदारान और अमायदीन शहर बड़ी तादाद में शरीक हुए। गरीब लड़कियों को जहेज जिसमें फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, डिनर सेट व दीगर जरूरियात जिंदगी का सामान दिया गया। हर साल की तरह इस दफ़ा मेमन फार्म हाउस पे ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें तमाम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो हमारी बच्चियां हैं। फर्नीचर के अलावा तमाम चीज़ें जो घर की ज़रूरत है। ये शादियाँ हुई हैं, तकरीब हो रही हैं, हमारे खालिद कादरी और ये अब्दुल अजीज़ मेमन वेलफेयर की तरफ से। अल्लाह ताला बच्चों के नसीब अच्छा करे। बहुत सी बहन बेटियां घरों में बैठी रह जाती हैं, पर खालिद कादरी ने ये अज़म उठाया है और बहुत सारे बच्चों की शादियों का जिम्मा अपने हाथ लिया हुआ है। गवर्नमेंट को भी इनके साथ ताउन करना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिलानी वेलफेयर वाले। तकरीब के खिताब में मुकर्रीन का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो हर शहर में ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करे ताकि मुस्तहिक और गरीब अफराद इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। नौशहर फिरोज़ की तहसील बरिया सिटी के मेन चौक पर बच्चों की टोलियां चलती गाड़ियों और आते जाते लोगों की तरफ दौड़ती नजर आती हैं। कम उम्र छोटे बड़े बच्चे बच्चियां बोरियां हाथों में उठाए कचरे की धाती टोकरियों से प्लास्टिक की बोतलें तलाश करते रहते हैं। सारा दिन इशारों पर रुकी गाड़ियों का पीछा करते हैं, जिनसे शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना है। शहरियों का कहना है कि चिल्ड्रन प्रोटेक्शन के इदारे इसका नोटिस लें। गोडकी में JUIF की जानिब से मीरपुर माथेलियों में अमन रैली निकाली गई। आपको बताएं कि रैली की क़यादत मौलाना सिराज अहमद और अब्दुल गफ्फार चाचड़ और दीगर ने की। रैली में सैकड़ों की तादाद में कारकुनान शरीक हुए। मुजाहिरीन का कहना था कि ज़िला गोडकी में इस वक्त बदअमनी की इंतहा हो गई है। अमन हमारा बुनियादी हक है जो दिया जाए। जेलों में डेंगू वायरस में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। सिविल अस्पताल में डेंगू वायरस के मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड कायम कर दिया गया है, जहां पर मरीजों का इलाज जारी। मजीद क्या तफसीलात हैं ये जानेंगे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेट्रो 1 न्यूज़ अब्दुर्रहमान कादरी से। अब्दुर्रहमान कादरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, जेहलम में डेंगू वायरस बेकाबू होता जा रहा है। जिला भर में मजमूई तौर पर 14 डेंगू के मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमा सेहत जेहलम के मुताबिक 6 मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं, जबकि मरीजों का इलाज मुआवजा जारी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डेंगू वायरस में मुब्तला मरीजों के लिए वार्ड कायम की जा चुकी है। यहाँ पर मरीजों को इंसुलेट करके इलाज किया जा रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर मियां मदद हयात के मुताबिक डेंगू वायरस में मुब्तला मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री दीगर इलाकों की है। डेंगू वायरस से बचाव के लिए आगाही मुहिम में तवत्तर के साथ जारी है। सीओ हेल्थ का ये भी कहना है कि डेंगू वायरस से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करें, घरों और इर्द गिर्द के इलाकों में खड़े पानी को ज़ाया किया जाए। जी
चेचनिया में ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है। आपको बताएं कि चिश्तिया के नवाही इलाके में ज़मीन के तनाज़े पर होने वाले तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 शदीद ज़ख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। जाँ बहक होने वालों में मोहम्मद मुजफ्फर और मोहम्मद जफर जबकि ज़ख्मियों में मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद फयाज शामिल हैं। थाना बख्श खां पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। खानका डोगरा में खुलने वाले नए रेस्टोरेंट मदनी डेरा के खानों ने धूम मचा दी। 30 से ज़ायद मुख्तलिफ अक़साम के शानदार जायके वाली डिशेस खाने वालों का तांता बन गया। खानका डोगरा के मारूफ ताजिर राना अकबर अली के गल्ला मंडी में बनाए गए नए रेस्टोरेंट मदनी डेरा की इफ्तिताही तकरीब मुनक़्क़िद हुई। मौलाना ज़ियाल मुस्तफ़ा रिज़वी और मुमताज़ मुस्लिम लीग की रहनुमा बैरिस्टर राना मुश्तबा जमाल ने ताजिरों, सहाफ़ियों, सियासी शख्सियात और शहरियों के हमरा इफ्तिताह किया। मेहमानों की तवाज़ो रेस्टोरेंट के शेफ़ की तरफ से बनाए गए मुख्तलिफ अक़साम के जायकादार खानों से की गई। शहरियों ने शेफ़ के हाथों बनाए गए जायकादार खानों को खूब सराहा। उनका कहना था कि मदनी डेरा रेस्टोरेंट इलाके के लिए एक नेमत है। राना बरादरान की अच्छी काविश और शहर में खूबसूरत इजाफा है। खानों के शौकीन अफराद को अब दूर दराज से आने के बजाय अपने शहर में ही हर किस्म के खावे मिल जाएंगे। जलालपुर भटिया में पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। फायरिंग के तबादला हेड कांस्टेबल जख्मी हुआ है। आपको बताएं कि जलालपुर भटिया में 15 पुलिस को इत्तला मिली कि शहरी से मुल्जिमान लूट मार कर रहे हैं। पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए जाए वक़्वा पर पहुंची तो मुल्जिमान ने पुलिस को देखते ही पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 डाकू मौके पर हलाक हो गए जबकि 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। डाकुओं की फायरिंग से हेड कांस्टेबल भी जख्मी हुआ। चिन्योट में शहद की मक्खियों ने 5 बच्चों समेत 8 अफराद को काट लिया। तमाम अफराद घर में मौजूद थे। मक्खियों ने हमला कर दिया। रेस्क्यू 1122 ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर मुतासरा अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शहनामे से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।